Hello students, today we are here with our next lecture of chemical reactions and equations. Here some more type of equations we have to study. क्लियर, पिछले वीडियोस में हमने कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था. अभी हमारे पास कुछ और टाइप्स की इक्वेशंस बाकी हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन इज स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस. दीज आर स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस. हमने कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया था. हियर द स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस. फर्स्ट वन इज द फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शंस, इट मीन्स द रिएक्टेंट्स आर going to convert into product in a very short time period. It means very quickly the reaction is going to take place. Now this reaction takes place in fraction of seconds, and these reactions are basically ionic in nature. ठीक है, बहुत जल्दी जैसे ही हमने टू रिएक्टेंट्स को एक साथ मिलाया और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शंस कंप्लीट होती है. इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस, एंड बेसिकली दीज आर आयनिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म NaOH, to form salt and water. This is hydrochloric acid and this is sodium hydroxide. It is an acid, it is a base, and it will form salt and water. This is a type of neutralization reaction. If we write this reaction in ionic form, then H plus ion, Cl minus ion, here Na plus ion and OH minus ion. After the reaction, the product which is formed, that is NaCl, in which Na is plus and Cl is minus ion and H2O is formed. Here this H plus ion goes to OH minus ion and this Cl minus ion goes to Na plus ion, and the product will formed. Clear? One more example, that is called as reaction of silver nitrate with HCl. Silver nitrate means AgNO3. The reaction of silver nitrate with HCl is also an example of fast reaction, and here the product which is formed is AgCl and HNO3, that is nitric acid will formed. Clear? This reaction going to take place very fastly. Here the white precipitates of AgCl, silver chloride. The white precipitates of silver chloride is obtained. Precipitates means the insoluble solid part in the liquid part. Clear? That is called as precipitate. Here one more definition is also required, that is half-life. Half-life means it is the total time taken to convert the reactants, half of the reactants into the product. Clear? What is the definition of half-life? Half-life means it is the total time taken to convert half of the reactants into the product is called as half-life. Clear? So this is the fast reaction which completes very fastly. The second one is the slow reaction. The slow reactions are going to complete very slowly. They may take few hours, days, months and even years. Clear? The slow reactions
are going to complete very slowly. They may take some hours for the completion, or days, or months, or even years also. Clear? जो बहुत लंबे टाइम तक कंप्लीट होती है, जिसमें कई घंटे, कई दिन, कई महीने और कई बार तो साल भी लग जाते हैं रिएक्शंस को कंप्लीट होने में. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्लो रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन. सो हियर द स्लो रिएक्शन इज iron. Clear? When it reacts with oxygen plus H2O, then it forms Fe2O3 dot XH2O. Now X means the number of water molecules. We have to balance the chemical equation. Again, start balancing. What are the elements here? The elements in the reactant and the elements in the products. The elements are iron, oxygen and hydrogen. In the reactant, iron is 1. In the product, iron is 2. In the reactant, oxygen 2, 1, 3. And in the product, oxygen is 3 and 4. Here, the hydrogen, 2 hydrogen are there in the reactant and 2 hydrogen are there in the product. We have to balance iron and oxygen. Hydrogen is already balanced. Clear? So first of all, except oxygen and hydrogen, whatever is present in the reaction, this has to be balanced first. तो हम पहले आयरन को बैलेंस करने वाले हैं. आयरन हमारे पास कहाँ पे कम है? रिएक्टेंट में कम है. यदि हम इस रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 आयरन. तो आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे. आयरन कितना हो गया? हमारे पास 2 हो गया. आयरन गॉट बैलेंस्ड. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट्स में है 3 और प्रोडक्ट्स में है 4 ऑक्सीजन इज देयर. तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन होगा? 4 and 5. इट मीन्स 2 से ठीक नहीं रहेगा. हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से. 3 2 6. ठीक है, 6 ऑक्सीजन इज देयर. 6 and 7 ऑक्सीजन आर देयर. ठीक है, तो आपने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास कितना ऑक्सीजन आ गया? यहाँ पे 6 and 7. अब हमारे पास ऑक्सीजन वहां पे क्या हो गया? कम. मीन्स प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है आपके पास? अभी 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है, तो हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना है. यदि हम यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ठीक है, आयरन को यदि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आयरन भी क्या हो गया? 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 and 7. ऑक्सीजन 7 हो गया, लेकिन आयरन भी कितना हो गया? 4. तो हम यहां से 2 हटाएंगे और इस आयरन को भी 4 कर देंगे. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? 4. अब हमें बैलेंस करना है. आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हमारे पास 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इट मीन्स द रिएक्शन इज गोइंग टू बैलेंस्ड. ठीक है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास कितने होंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर. क्लियर? तो रिएक्शन आपके पास क्या हो गई है? अभी हम देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. 4 आयरन 6 and 7 oxygen, 6 and 3, 9 oxygens are there. It means oxygen is still unbalanced. Now hydrogen, 2 hydrogen, but oxygen is not balanced. For balancing the oxygen, we have to put 6 here. जब आपने यहाँ पे 6 लगा दिया तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 and 6, 12 ऑक्सीजन आर देयर. अब हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो हमारे पास कितना हुआ? 6 ऑक्सीजन, देन उसके बाद में हमारे पास 3 ऑक्सीजन, ये हो गया 9 ऑक्सीजन आर देयर. ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया. ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गया. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंप्लीट ना, इसमें हम पूरे इस कंप्लीट की बात करेंगे. तो इसके पूरे कंप्लीट के अंदर हमारे पास कितना हो गया? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2O3 dot 3H2O.
तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया 12, ये 6 और ये 2 इसके पास भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हमारे पास एक ही कंपाउंड है। तो ये 2 आपके पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया टोटल ऑक्सीजन भी कितना है 12, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, स्लो रिएक्शंस, जो बहुत स्लोली कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वन मोर रिएक्शन इज देयर, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, आपको समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं वन मोर रिएक्शन दैट इज KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, व्हेन इट डिकम्पोजेज इट फॉर्म्स KCl plus O2, इट इज ऑल्सो अ स्लो रिएक्शन, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना है, ट्वाइस KCl 2, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 3, ये हो गया आपके पास रिएक्शन बैलेंस। वन मोर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, it is also a very slow reaction. So here the reaction between CH3COOH, which is acetic acid, and C2H5OH, it is ethanol or ethyl alcohol. When both of these reacts together, then it form CH3COO C2H5. It means ethyl acetate and water molecule will remove out. This reaction is also very slow reaction. Clear? Acetic acid, ethyl alcohol, ethyl acetate. This is a slow reaction. So these are the fast and slow reactions. Next type of reaction, that is irreversible and reversible reactions. Clear? Next reaction is irreversible. Irreversible reactions are those reactions which proceed only in one direction. It means reactants combine to form product, but product will again not dissociate into the reactants. So this reaction proceed only in one direction. ना यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में होने वाली जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसको हम वन हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल C+O2, it is an irreversible reaction. Carbon dioxide is formed. One more reaction, that is methane. When methane burns in the presence of oxygen, then it forms carbon dioxide and water. This is again an irreversible reaction. For balancing the chemical reaction, we put 2 here. Clear? तो हमारे पास मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा, लेकिन इससे हमारे पास वापस ये रिएक्टेंट नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमारे पास वापस से नहीं बनेगा। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शंस, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और सेम टाइम प्रोडक्ट से हमारे पास वापस रिएक्टेंट भी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल A+B forms C+D and this C+D again forms A+B. This is first reaction and this is the second reaction. A+B forms C+D. It is the forward reaction. Forward reaction. And C+D, when it forms A+B, then it is the backward reaction. It means the reaction which proceeds in both the directions, forward and backward. This type of reactions are denoted by this type of arrow, ना डबल साइडेड एरो जिसको हम कहते हैं। तो इससे हम इन रिएक्शंस को डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो
रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर से हमें ऑब्टेन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रूट इक्वेशन. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन दैट इज formation of ammonia. N2 plus 3H2, it forms twice NH3. It is a reversible reaction, so we put this type of arrow in between the reactant and product. One more reaction, that is H2O plus H2CO3, water plus carbonic acid. It forms H3O plus HCO3 minus ion. ठीक है, दिस इज द बाइकार्बोनेट आयन एंड दिस इज द हाइड्रोनियम आयन. तो यहाँ पर जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रही है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस. और ये रिएक्शंस जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं दे आर कॉल्ड एज irreversible reaction. Still there are some more type of reactions are there, and about those reactions we will discuss in our next lecture. तब तक आप इन वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस कंटिन्यूसली हमारे पास हर वीडियो में चल रही है. अभी कुछ और टाइप्स के रिएक्शंस बाकी है, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.